ये अच्छी गेंद, अच्छी लाइन। फिलहाल नीचे चलते हैं जहाँ पे हमारे साइरस पीछे मैच चल रहा है एंड वी आर नाउ विद वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री, मिस्टर सलमान खान. थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग विद अस. You don't say that, but No? lots of nice people in the industry. Our relationship off the field is really different. Absolutely. I was yesterday just seeing everybody checking into the hotel. Everybody's hanging out together, eating together. So it's quite a wonderful atmosphere. Industry, no? I just got to know. हाँ, Ridya Foundation में दिया है इन लोगों ने. They're going to do about 100 operations. Charitable trust called Big Brother, I think. So वाह यार कमाल है. Being human के बाद ये सब पहले भी था, अभी भी है. थोड़ा सा फैशनेबल है. काम अच्छा हो रहा है. लोगों की जान बच रही है. ये 100 बच्चे you know who have no chance of survival because money cannot save their lives. अब इनके पास 100 बच्चों के पास ये आ गए हैं लोग CCL वाले जो कि you know they will give them a longer life and a healthier life. और फिर सचिन जोशी भी पैसे डोनेट कर रहा है. I hope कि इतने रन बनाए कि सचिन जोशी कंगाल हो जाए. I think that's what's happening. सब यही करने की कोशिश में है. That's a great thought. उसको बर्बाद कैसे करें सचिन जोशी को. Batting practice दुगनी हो गई. Salman, we're going to quickly do a segment with you. This is called Letters from Fans. कुछ जी जी जी. बहुत सारे फैंस ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं. हमारे पास है 4 क्वेश्चंस आपके लिए क्रिकेटिंग बेस्ड. पहला ये कि इन द फिल्म हम आपके कौन रेणुका शाने गॉट मोनीश बेल आउट. डिड यू थिंक टफी मेड द राइट डिसीजन एट दैट पॉइंट इन टाइम? देखो मोनीश बेल, रेणुका शाने, टफी मुझे याद है. क्रिकेट हम आपके हैं कौन में कब था मैच हो रहा था वहाँ पे. ये याद नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले 20 साल हो चुके हैं. 20 साल या 25 साल हो चुके हैं. 20 साल हो चुके हैं हम आपके हैं कौन. अच्छा, ऊटी में एक मैच चल रहा था जहाँ पर टफी ने LBW दिया था मोनीश बेल को. मोनीश बेल आउट हो गए. सही डिसीजन था. करेक्ट डिसीजन था. उस फिल्म में सब अब सुपर सेलिब्रिटी बन गए. Apparently all the birds have also relaxed and retired. Next question is which cricketer would you compare your 2 brothers to and yourself with? None of them, because it'll be really humiliating for those cricketers. My brothers have been compared to them. But Arbaz is a very big cricket fan, and Sohail obviously is. And Arbaz only watches cricket, and Sohail's love for cricket so much that he's become a part of CCL, and we've got Mumbai Heroes. तो ये और हमारा भी इतना लगाव है कि हमारे 2 भाई हैं, तो जहाँ हमारे 2 भाई हैं हम भी वहीं हैं. अच्छा, मैं जब सोहेल से बात कर रहा था तो Amazing thing is one day we were watching cricket, me and my father, और बहुत धूप चल रही थी, सबके पसीने से टपक रहे थे. तो he says देखो मेरी बात सुन ली होती तो आज तुम यहाँ पे खेल रहे होते. Because as a child he wanted me to play cricket. So Mr. Salim Durrani used to come to coach me. मुझे ऐसा लगा कि यार ये सालों साल यही करना पड़ेगा, इसमें बहुत मेहनत है. So when my dad used to come to watch me, I started playing really badly. And that got stuck. I thought कि हाँ अच्छा खेलूँगा, चौके वौके मारूँगा, play really well. तो he's going to encourage me into this field. ऐसे जितना सीखना था मुझे उतना मैंने सीख लिया है. क्रिकेटर नहीं बनना मुझे कहीं और जाना है. So I moved out. तो अब वो एक पहले का प्रिंसिपल जो हुआ करता था कि you've got to be a master of one, jack of all was nothing. Today ये है कि स्पेशली हमारी लाइन के अंदर you need to be jack of all. फिर बाद में टेक्निकल लोग आके उसको बढ़ावा देते हैं and you look like the master. Absolutely, but I mean you are the master. You've mastered a lot of different things in life. People around me have mastered me to take my level to a different level altogether. मैं सोहेल से बात कर रहा था तो I was asking when you guys used to play as children, do you remember the first match that you were taken to? The first professional match maybe your dad took you guys to? First match that I was taken to was in Brabourne Stadium, and Philip Uncle, he used to be a neighbor. He took me for a match. He used to be a big cricket fan and alcoholic, and he died of alcohol, and a long time ago. He used to be a shippy, and he took me. I wonder how my parents let me go with him. You went alone with Philip Uncle? Yeah. And I was sitting right behind, so they could see like really small figures running around this big stadium. I was like, yeah. And then when TV came, I said, yeah, ये TV का अच्छा है. High speed में भी देख लो, repeat भी देख लो. Energy of coming to a stadium is a different level. The amount of good energy that happens over here is unbelievable. Real cricket with celebrities is the best combination ever, and CCL is going to take it to
to a different level only altogether, because एक तो celebrities हैं और from each industry they're really popular celebrities who are playing. एक तो वो fan following, and they're not playing some idiotic amateurish cricket. They're playing serious cricket. So throughout the year, all these boys, even though they're working, the sport, the cardio they're doing is they're only playing cricket. Our boys as well as all the boys. You can see the level from the first season to now Absolutely. is improved. In fact, I was talking to these boys. It's 7 o'clock training every single day for over a month with their given schedules, which are busy. That's quite a lot of love and dedication. शूटिंग पे नहीं जाता कोई 7 बजे क्रिकेट खेलने चला जैसे ना कि पार्टी में कभी लेट मत हो, शूटिंग में लेट होता ठीक हो जाता. So out here it's a big party. They love it. Everyone, जितने भी बचपन की ख्वाहिशें थी वो सब अब यहाँ पर पूरी हो रही हैं कि हमको टेस्ट खेलना था, हमको स्कूल से खेलना था, हमको कॉलेज से खेलना था, रणजी से खेलना था, तो अब सब यहाँ पर सब क्या. So now they're also they've got that zest and they want to do it, and it's a good feeling to be together and play this sport. It's amazing. They have a WhatsApp group apparently where it's 4 hours of conversations happened only on how to crack and win the game. और 2-3 जोक भी आ जाते हैं बीच में. They're like totally and more than us, the South boys. They're playing. हम लोग तो 1-1.5 महीने 2 महीने से शुरू हो जाते हैं, because everyone out here is like really busy. वहाँ पर तो वो लंच ब्रेक में भी शाम को भी वहाँ पे चलते रहता है उनका क्रिकेट. So they're practicing all the time, these boys. Salman, one last question is that, okay, your dad wanted you to be the cricketer. If you were not an actor, what do you think you would most have enjoyed? Something you'd be as happy doing in life? Something to do with the film industry only. I wanted to be a director, so I guess, a director would be the most enjoyable thing after acting. But now I'm enjoying acting so much that direction is on hold for the longest time. Thank you so much for talking with us and speaking with us. Thank you very much, Salman Khan. Over to the wonderful match and let's see how that goes. शुक्रिया साइरस. जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प ये इंटरव्यू सलमान खान के साथ. इसके बाद में ज़रूर इसकी भी चर्चा करेंगे. इंटरव्यू की जो बातचीत की सलमान ने, मेरे साथ अभी भी अतुल है. और फिलहाल चेन्नई राइनोज की बात करें तो बहुत ही मजबूत स्थिति में ठोस शुरुआत उनके द्वारा. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वरुण बडोला. मुझे लगता है कि रजनीश दुग्गल को और वरुण बडोला को पहले गेंदबाजी करानी चाहिए थी. जिस तरह की प्रॉपर गेंदबाजी रखी है, शुरू में अगर ऐसा प्रेशर बन जाता शायद कुछ फर्क पड़ता. 12 ओवर थे वेस्ट इंडीज के पास. बड़े फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर थे. कई बार उनको मिलने का मौका मुझे भी मिला. सलीम दुरानी स्टाइलिश खिलाड़ी, और कल हम बात कर रहे थे जो स्टाइलिश खिलाड़ियों की जो हैदराबाद से रिलेटेड रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन में, और मैं ML जैसिमा और सलीम दुरानी का भी नाम आता है. और बहुत क्रिकेट क्रेजी फैमिली है सलमान की. अरबाज तो बहुत बड़े फैन है, सोहेल भी और सलीम साहब भी. जो यही रहता है कि जब आप खेल नहीं पाते तो फिर अपना जो है प्यार जो है और अपनी एस्पिरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं पूरी करते हैं. और सही कहा उन्होंने, ये सभी खिलाड़ी जो हैं कहीं ना कहीं किसी लेवल पे क्रिकेट खेलना चाहते थे, खेलते थे, पर आर्टिस्ट बन गए और अब फिर वापस उनको मौका मिला है ये सब कुछ खेलने का. तो इसीलिए आप जज्बा जो है, इसके बारे में सोच रहा था मैं कि इतने एफर्ट आप फन के लिए नहीं लगाते हैं. आप चाहते हैं कि अपने जो पीयर ग्रुप है, अपने कंटेम्प्रेरीज हैं, उनकी आंखों में इज्जत देखने के लिए. क्योंकि अगर आप 50 रन भी बनाते हैं और आपकी टीम जीतती है, उससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं. बेशक आप 100 रन बना दें पर टीम आपकी हार जाती है तो कहीं ना कहीं किसी भी खिलाड़ी को निराशा होती है. बेशक आपने 100 रन क्यों ना बनाए हो या 5 विकेट क्यों ना लिए हों. अच्छा एयर में क्विक गेंद करते हैं शबीर. आर्ट्स इनिशिएटिव को देती है. भारत तैयार हैं अभी अगली बल्लेबाजी कराते हुए. मौसम तो बढ़िया है अतुल यहाँ पे. अब उनको झंडे दे दिए गए थे, अब वो उन्हीं के पास वो झंडे हैं. अब उन्हें एक बार फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल करते हुए और गैप में खेला है. 4 रन और मिलेंगे, ये मुश्किल है. एक ओवर अच्छा, अगले ओवर में रन आ रहे हैं और ये जो टारगेट है चेन्नई राइनोज के लिए बहुत ही करीब नजर आता हुआ.
बड़ी एक्शन है वरुण बड़ोला का, पर गेंद को काफी शॉट रखा और काफी वक्त मिला विक्रांत को, जो कि पूरी तरह से सेट है और सेट बल्लेबाज कभी ऐसी गेंद को मिस नहीं करेगा। यही कह रहा था मैं कि वरुण को नए गेंद से गेंदबाजी करानी चाहिए थी। कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जंप लेके पूरी अपनी कमर बेंड कर रहे हैं वरुण, ये बात अच्छी लग रही है मुझे। में बल्लेबाजी करना आसान रहे क्योंकि ओस के कारण। बहुत बढ़िया गेंद यहीं पे डाला होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हिट, क्या ये आउट है? मुझे लगता है रेफर जरूर करेंगे स्क्वायर लेग एम्पायर। फिलहाल गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है और अगर ये रनआउट नहीं होता तो 5 रन मिलेंगे चेन्नई राइनोज को। पर जो शारीरिक भाषा है इस वक्त मुंबई हीरोज के खिलाड़ियों की, उनको लग रहा है कि यहाँ पे उनको विकेट मिल सकता है। बहुत दिलचस्प रहेगा ये रिप्ले। और ये जो एंगल है अतुल, बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत ही डिफिकल्ट रहता है ये एंगल स्टंप को हिट करने के लिए, अंडरआर्म बढ़िया हीरोज की टीम के लिए। और कहीं ना कहीं या नॉट आउट का निर्णय थर्ड एम्पायर का, क्योंकि बेस निकलनी ग्रूव में और बैट सिर्फ लाइन के ऊपर है, कोई भी हिस्सा बैट का जो था वो अंदर नहीं था क्रीज के। तो ये किस तरह से नॉट आउट दिया है, ये मैं तो हैरान परेशान हूं। देखिए विष्णु, अगर आप देखें बिल्कुल भी झिझके नहीं थे, एकदम निकल लिए थे उस रन के लिए। और ना केवल अतुल ये नॉट आउट मिला है चेन्नई राइनोज को, पर उनको 5 रन भी मिलेंगे। देखिए थोड़ा सा एंगल के तहत दौड़े थे, सीधा नहीं भागे। हमेशा कहते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जब आप सीधा दौड़ते हैं, थोड़ा एंगल के तहत बाहर को निकले थे। वो ज्यादा मायने रखता नहीं, पर ये मायने रखता है कि आपने एक आउट खिलाड़ी को नॉट आउट दे दिया, वो भी 4 बार सुपर स्लो मोशन देख के। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि ये जो रिव्यू सिस्टम है या टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल जो है, कई बार क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो है टेक्नोलॉजी की वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं। एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा है कि कहीं से लगता है आउट है तो अंपायर जब आता है नॉट आउट होता है तो थर्ड अंपायर भी उसी टेंजेंट में, उसी ट्रेन ऑफ थॉट में होना बहुत ज़रूरी है। ये सीधे बल्ले से खेला है, क्या जबरदस्त प्रहार। यहाँ पे 6 रन मिलेंगे मैक्सिमम, लंबा छक्का यहाँ पे। विक्रांत 49 पे और 50 रन पूरे किए उन्होंने। तो एक्साइटिंग ओवर, पर मुंबई हीरोज के लिए निराशा। 129 पे 1। वरुण फिर से बढ़िया यहाँ पे अब लाइन उन्होंने डाली है, पर अभी शबीर गेंदबाजी करते हुए ठीक कह रहे हैं अपने फील्डर को कि जल्दी स्टार्ट लीजिए सर्कल। जानबूझ के बल्ले का मुंह खोला और वापस आते हुए अब दूसरे रन के लिए विष्णु हाल से पहुंचते हुए इस स्ट्रोक के साथ। पर ये एक बहुत बढ़िया चीज और गेंद से भी बढ़िया कार्य किया विष्णु ने, विकेट्स भी लिए, रनों पे भी अंकुश लगाया, कप्तानी भी कर रहे हैं। अजीवा इस लाइनअप में मौजूद नहीं है, हीरोज के लिए इतना आसान नहीं। पर क्या लगता है अतुल आपको मुंबई हीरोज तो ये स्कोर लगभग 200 के आसपास होना चाहिए था इस पिच पे, जिससे कि थोड़ा प्रेशर होता। मैं ये नहीं कहता कि 100% जीत जाते, पर उस प्रेशर से चेन्नई के खिलाड़ी जो है वो गलतियां ज्यादा करते। अंडरप्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं, जो दिल के रोग से पीड़ित है, उनका इलाज होता है। और यहाँ पे एक और बढ़िया शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले से विक्रांत। शेट्टी अन्ना आज का मुकाबला नहीं खेल रहे मुस्कुराते हुए, इसलिए क्योंककि उनकी टीम पहले ही प्रवेश कर चुकी है सेमीफाइनल पे। और यहाँ पे और रन मिलेंगे, और रन मिलेंगे यहाँ पे, बहुत ही करीब आती हुई चेन्नई राइनोज की टीम जीत के 142 पे 1। देखिए किस प्रकार कलाइयों का प्रयोग किया और गैप में खेला, जबरदस्त टाइमिंग। एक बार फिर थोड़ा सा पैड लाइन में ड्रिफ्ट करते हुए 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 142 पे 1।